الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم. حضرات محترم، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارا موضوع جو تزکیہ نفس کا چل رہا ہے اور اس ضمن میں آداب کی بات ہو رہی تھی، لیکن چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور کچھ ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جی کرتا ہے کہ انسان اپنا حصہ بھی اس میں ڈال لے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات میں آمد ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں ہے. یہ تو بہانہ ہے، ایک مہینہ ہے ہمیں اپنے آپ کو یاد دلانے کا، ورنہ سارے ہی شب و روز اسی ہستی کے شب و روز ہیں، سارے ہی دن آقا کے دن ہیں، ساری ہی راتیں آقا کی راتیں ہیں، ساری صبح اسی کی صبح ہیں، ساری شامیں اسی کی شامیں. انہی کا صدقہ ہے، انہی کا کرم ہے، انہی کے ٹکڑوں پہ ہم پلتے ہیں. ربیع الاول خاص نہیں ہے. یکم محرم سے لے کر 30 ذی الحج تک، 30 ذی الحج سے لے کر یکم محرم تک سارے موسم آپ ہی کے تو موسم ہے. آپ ہی کا تو صدقہ ہے کہ آج ہم مسلمان بیٹھے ہیں. آپ ہی کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسجدوں جیسی دولت عطا فرمائی. اس لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک جو ہے یہ اصل میں ہم اپنی نجات کے لیے کرتے ہیں. آقا کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں. ساری کائنات مل کر حضور کے ذکر اقدس کو کرنا شروع کر دے تو آپ کی عزت و عظمت میں کوئی ایک رتی برابر فرق نہیں ڈال سکتا. اور ساری کائنات مل کر اس ذکر کو چھوڑ بھی دے تب بھی آپ کے ذکر مبارک میں کوئی رتی برابر کمی نہیں کر سکتا. جس ہستی کو اللہ نے خود کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ یعنی جس ہستی کے ذکر کو اللہ رب العزت خود بلند کر رہے ہیں، بلند کرنے والے ہیں، بلند کر رہے ہیں اور بلند کرتے رہیں گے، وہ میرے اور آپ کے ذکر کی محتاج نہیں. یہ تو ہم ایک بہانہ بناتے ہیں کہ چلیں ہمارا بھی اس کے اندر حصہ ڈل جائے، شاید کہیں کوئی دو لفظ کہے ہوئے، کوئی بولے ہوئے، کوئی سنے ہوئے ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا،
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ جب حضور کا ذکر ہوتا ہے تو الفاظ جو ہیں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، انسان بڑا اپنے آپ کو بے بس اور مجبور محسوس کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں اور آپ کہاں، کسے مہر علی کسے تیری صدا، کسے گستاخ ہتھیاں کسے جالڑیاں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہزار بار بشو امتحان بشو گلاب، ہنوز نام گفتم کو بے ادبی ہے۔ کبھی کبھی تو سوچتا ہوں مولا، یہ محض تیری رحمت ہے کہ تو نے اپنے حبیب کا نام لینے کی اجازت دے رکھی، ورنہ ہماری وہ گندی زبانیں سارا سارا دن اور رات بکواس بکتی ہیں، اس زبان کو یہ کہاں سے دیتا ہے کہ محمد کا نام لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال آنکھوں میں نور، آنکھوں میں نور دل میں بصیرت ہے آپ سے، آنکھوں میں نور دل میں بصیرت ہے آپ سے، میں خود تو کچھ نہیں، میری قیمت ہے آپ سے، میں مٹی کا ڈھیر، میری حیثیت کیا، اس مٹی کے ڈھیر کو قیمت تو آقا کے قدموں کی برکت سے ملتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری حج فرمایا، بوڑھے ہو گئے، مکہ مکرمہ سے واپسی پہ ایک جگہ لیٹ گئے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو مولا عمر کی ہڈیاں بوڑھی ہو گئی، اب 22.5 لاکھ مربع میل حکومت کا بوجھ نہیں سنبھالا جاتا، مولا تو عمر کو واپس بلا دے۔ کسی نے کہا کہ عمر تمہاری تو ابھی بڑی ضرورت ہے امت مسلمہ کو۔ کہا عمر کی کیا حیثیت ہے، عمر تو وہ ہے کہ جس کا باپ اسے مارا کرتا تھا، عمر تمہیں اونٹ چرانے نہیں آتا۔ یہ محمد کے قدموں کی برکت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر آج 22.5 لاکھ مربع میل کی حکومت کرتا ہے۔ حقیقتاً ایسا ہی ہے۔ 12 ربیع الاول آئے یا کوئی اور دن آئے تو میرے دوستو جھنڈیاں لگا لو اور چراغاں کر لو، سب کچھ کر لو، لیکن کبھی کبھی خدا کے لیے سجدے میں سر ڈال کے اللہ کے حضور شکر بھی تو ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس نبی کی امت میں پیدا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کلمے کی دولت نصیب فرمائی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے لا الہ الا اللہ کہنے والا بنایا۔ میرے محترم دوستو، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن کبھی آپ نے سوچا اس ذکر رسول سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ ساری عمر ہماری بیت جاتی ہے یا محمد کرتے ہوئے، اللہ کرے کیسے بیتے، لیکن کبھی ہم اپنا سیلف چیک نہیں کرتے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے ہمارے اندر، اپنا احتساب نہیں ہے، ہم دیکھتے نہیں کہ یا محمد نے ہمارے دلوں پہ کوئی اثر کیا کہ نہیں۔
अगर हमारी जिंदगी नहीं बदलती, बड़ा अजीब है, पढ़ रहे आप नाराज ना हो जाए। तो मुझे तो यही नजर आता है, हमारा मुआशरा एक अजीब मुआशरा बन चुका है। यानी हर वो शख्स जो अपने आप को मजहबी कहलाता है, जिसकी शक्ल सूरत कोई मजहबी बन जाती है, न जाने उसकी सख्ती में क्यों इजाफा हो जाता है। मैं तो हैरान होता हूँ। यानी मोहम्मद का नाम लेवा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके अंदर नरम मिजाजी ना आए, मोहम्मद का नाम लेवा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसका दिल मोहब्बत से न भर जाए, मोहम्मद का नाम लेवा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके दिल में खैर ख्वाही ना हो दूसरों के लिए, मोहम्मद का नाम लेवा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसका दिल ये ना चाहे कि सारे के सारे जन्नत के अंदर चले जाएं। तो मेरा ख्याल है फिर हमें इस नाम लेवा होने की शक करना चाहिए। हर गुनाहगार, हर बदकार को हम चाहते हैं जहन्नम के अंदर चला जाए। क्या वजह है इसकी? तो मतलब है कि मोहम्मद के नाम लेवा नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो शख्स गुनाह करता है, बुरा करता है, लेकिन गुनाह से नफरत हो, गुनाहगार से नफरत ना हो। जब बच्चा जो है गंदगी के अंदर बिछड़ता है, क्या माँ उसे फेंक देती है? कभी देखा किसी माँ ने बच्चे को फेंका हो? उसी बच्चे को साफ सुथरा करती है, उसी को नहलाती है, उसी को दहलाती है, उसी को खुशबू लगाती है, उसी को फिर सीने से चिमटा देती है। और हम तो हर गुनाहगार को, हर बुरे को जिसे हम समझते हैं बुरा, बाकी तो अल्लाह ही जानता है, उसको जहन्नम के अंदर फेंकना चाहते हैं। इस उम्मत को क्या हो गया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक दिन का चुनकर ये बात लगाया था। ओहद के मैदान के अंदर आका के जिस्म अंदर से खून बह रहा है, दंदाने मुबारक में जख्मी हो गए हैं, चेहरे मुबारक वो चेहरा जिसको देख के ये कायनात बनती है, ये कायनात जीती है, ये कायनात जागती है, उस चेहरे से खून बह रहा है। साहबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके लिए बददुआ कीजिए। मेरे हुजूर ने हाथ उठाए, मौला ये मोहम्मद को पहचानते नहीं, इनको माफ कर दे, ये मोहम्मद को पहचानते नहीं। अल्लाह की कसम हम भी नहीं पहचानते। हर बंदे को हम जहन्नम के अंदर भेजने के ठेकेदार बने हुए हैं। जरा मुझे बताइए, एक शख्स किसी गुनाह के अंदर मुब्तला है, शैतान तो चाहता है गुनाह करता रहे। अगर गुनाह करते करते उसकी मौत आ जाए तो कहाँ जाएगा? जहन्नम में जाएगा। शैतान की ख्वाहिश पूरी हो गई। तो मैं आप भी यही ख्वाहिश करते हैं कि जहन्नम के अंदर चला जाए, मर जाए, मरदूद हो जाए। क्या फर्क हुआ मेरे और शैतान के अंदर? फर्क ये है, फर्क पड़ता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहूदी बेटा, यहूदी बच्चा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई बीमार है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार कुर्सी के लिए तशरीफ ले। बच्चा है, 12-15 साल का बच्चा है, उसकी इतनी फिक्र। हुजूर उस बच्चे के सरहाने बैठ गए, कहा कि बेटा कलमा पढ़ लो। अल्लाह अकबर। अब बच्चा बाप की तरफ देखता है, कभी हुजूर के चेहरे की तरफ देखता है। बाप ने कहा कि जो ये कहते हैं कर लो। बच्चे ने कलमा पढ़ा, वक्त आ गया आखिरी, जान जाने आखिरी की सुपुर्द कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि आपका चेहरा मुबारक देखा नहीं जाता कि आज मेरा एक उम्मती जो है जहन्नम से बच गई। ये सारी की सारी कायनात के सारे इंसान हुजूर के उम्मती हैं। एक वो उम्मत है जिसने हुजूर की दावत को कबूल कर लिया, हम खुशकिस्मती है हमारी उम्मत। इसको कहते हैं उम्मत अजाबत। और एक उम्मत दावत है
सारे काफर, ये सारे यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, ये सारी उम्मत दावत है, इनको हमें दावत देनी, इनको जहन्नम में नहीं फेंकना। अरे अल्लाह के बंदो, जन्नत और जहन्नम अल्लाह के लिए छोड़ो, ये उसका काम है, वो ये फैसले करे। मैं और आप ये क्यों फैसले करते हैं? मुझे और आपको तो हुजूर की सुन्नत पे चलते हुए ये फैसला करना है कि या अल्लाह कोई शख्स भी जहन्नम के अंदर न चला जाए। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के सदके कभी हमने सोचा कि हमें क्या मिला है? आपकी सीरत से हमने क्या लिया? हुजूर की सारी, कभी टाइम हुआ तो मैं अर्ज करूंगा, हुजूर की सारी सीरत एक तरफ, देखना ये पड़ता है कि हुजूर का मिजाज क्या था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या उस मिजाज से हमें कुछ मिला है हिस्सा, या बस बातें ही बातें हैं, दावे ही दावे हैं और लोगों को जहन्नम में भेजने के ठेके हैं? हुजूर की पूरी सीरत अलिफ से लेकर ये तक, शुरू से लेकर आखिर तक इस एक नुक्ते के गिर्द घूमती है, वो है नरम मिजाजी, वो है आपका मिजाज अक़दस। यानी 63 बरस की उम्र में कोई माई का लाल एक वाकया भी साबित नहीं कर सकता जिसमें यह साबित किया जा सके हुजूर ने किसी से सख्ती से काम लिया। ये है हुजूर की सीरत। इसमें से हमें कितना हिस्सा मिला? कितने 12 रबी अव्वल गुजर गए, कितने जश्न ईद मिलाद नबी हमने मनाए, लेकिन हुजूर की नरम मिजाजी से हमें कितना हिस्सा मिला? कभी हमने देखा कि हमारी मिजाज के अंदर सख्ती पैदा हुई या नरमी पैदा हुई? हमारे मिजाज के अंदर मोहब्बत पैदा हुई या नफरत पैदा हुई? हमारे मिजाज के अंदर दूसरों के लिए रहम पैदा हुआ या दुख पैदा हुआ? हमारे मिजाज के अंदर दूसरों के लिए खैर ख्वाही पैदा हुई या हमारे मिजाज के अंदर सख्ती पैदा हुई? आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, देखा कि एक सहाबी किसी गलती पर अपने गुलाम को मार रहे हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से उसको आवाज दी, कहा कि क्या कर रहे हो? तुम्हें इस गुलाम पर जितनी कुदरत हासिल है, तेरे अल्लाह को तुझ पर उससे कहीं ज्यादा कुदरत हासिल है। ये सुनते ही उस सहाबी ने गुलाम को आजाद कर दिया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजाद करता। और हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सहाबी अगर तुम आजाद न करते तो जहन्नम की आग तुझे छू करे। अल्लाह अकबर। आज तो हमने औरतों को अछूत बना रखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए, रोजाना बारी हुआ करती थी मुख्तलिफ ज़ौजा मुताहरा की। जिस ज़ौजा की बारी थी आप उनके घर तशरीफ लाए, तो किसी दूसरी बीवी ने खाने का एक प्याला बनाकर भेज दिया घर में। अब इंसान बहरहाल इंसान है, इंसानी मिजाज होते हैं। उस ज़ौजा मुताहरा ने देखा जिनके घर के अंदर आप मौजूद थे कि हैं बारी मेरी और खाना किसी और ने भेज दिया। तो वो खात्मा जो खाना लेकर आई, हाथ मारकर उस खाने को फेंक दिया, प्याला टूट गया। अल्लाह अकबर। अब ये है हुजूर का मिजाज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे माँ बाप आपके कुर्बान। हुजूर ने उस प्याले को उठाया, प्याले को उठा के एक जगह रखा, उसी तरह का एक नया प्याला उस खादिमा को दिया और खादिमा से कहा कि जाओ ये प्याला ले जाओ और मेरी ज़ौजा से इस वाक़े का जिक्र न करना, मेरी ज़ौजा से इस वाक़े का जिक्र न करना। ये होती है नरम मिजाज। बदर के मैदान में जब कैदी बनाए गए, वो कौन से कैदी थे? मामूली कैदी थे? खूनी दुश्मन थे, जान के दुश्मन थे, जिन्होंने मक्का के 13 बरस दिन रात अंगारों पे लौटा दिया था आपको और आपके सहाबा को। जब ये कैद में बने हैं तो रात को आप उठे तो देखा कि आहों की आवाज आ रही। अल्लाह अकबर। हुजूर तशरीफ ले गए, फरमाया इनकी रस्सियों को ढीला कर दो, इनकी रस्सियों को ढीला कर दो।
इन्हें वही खिलाओ जो तुम खुद खेलते हो, उन्हें वही पिलाओ जो तुम खुद पीते हो। अल्लाह हमारी इसी समय नसीब फरमा दे। मेरी सेहत इसकी इजाजत नहीं दे रही। दिल तो चाहता था कि हुजूर का जिक्र करता जाओ, मैं करता जाऊँ, आप सुनते जाए, लेकिन बहरहाल अल्लाह उसको कबूल फरमाए और हमारा भी इसमें हिस्सा डाल दे। हम सीरत को पढ़ते नहीं, हमने दीन कहीं और से सीखे हैं, हमने दीन मौलवियों से सीखा है। काश हम दीन को हुजूर की सीरत से सीखते। दीन को सीखना तो सीरत से सीखिए, दीन मौलवियों से सीखने से काम नहीं है। सीरत है जो आपको दीन सिखाएगी। यानी ये पिछले दिनों मुझे अजीब इत्तेफाक हुआ, पहले भी होता रहता था। लोग अयादत के लिए बीमार कुर्सी के लिए आते हैं दोस्त, लेकिन हमने पढ़ा ही नहीं बीमार कुर्सी क्या चीज है। हमारे मुआशरे में हर बंदे का ये ठेका है कि दो चीजों में मशवरा जरूर देगा। एक मेडिकल मशवरा जरूर देगा, डॉक्टर हो, हकीम हो, ना उसे जरूर देना ये। और एक वो मजहबी मशवरा जरूर देगा, मुफ्ती हो या ना, उसने उसने फतवा जरूर देना, उसने मसला जरूर कहना है। ये दोनों इतने बड़े गुनाह हैं कि आपको इससे तसव्वुर नहीं। इन्हें आके बीमार के पास बैठते हैं, अल्लाह अकबर, फलां मरीज, बस इसी मर्ज के अंदर उसका भी इंतकाल हो गया था, और फलां मरीज जो था वो बेचारा घिसटता रहा इस मर्ज के अंदर, वो बेचारा भी तड़प तड़प के वो भी मर गया। फलां मरीज था, बस उसको बड़ा समझाया लेकिन उसने बात नहीं मानी, वो बीमारा भी बेचारा भी इस मर्ज के अंदर चला गया। अच्छा, ये बीमार किससे हो रही है? अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। हमने देखा ही हुजूर की सीरत। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी की बीमार कुर्सी के लिए तशरीफ ले जाते हैं तो हमेशा उसको हौसला देते, हमेशा उसको हौसला देते, हमेशा उसके लिए दुआ फरमाते। दुआ तो हमें कभी याद नहीं रही, यानी ऐसा कभी नहीं हुआ कोई बीमार कुर्सी के लिए आया उसने आगे हाथ उठा दिया, या अल्लाह रहम फरमा, हम पे भी रहम फरमा, ऐसे भी रहम ना। अपनी बातें करेंगे, अपने अपने किस्से सुनाएंगे, बीमारों के किस्से सुनाएंगे, बीमारी के किस्से सुनाएंगे, मरने के किस्से सुनाएंगे, और उसके बाद जो है खाते पीते हुए रुखसत हो जाए। ये है सीरत को ना पढ़ने का अंजाम। खुदा के लिए मेरे मोहतरम दोस्तों, सीरत को पढ़ा। हमने एक ऐसी कौम, यानी हम एक ऐसी ऐसी भीड़ की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं जिससे कौम से कोई ताल्लुक नहीं। रेवड़ है, रेवड़, इंसानों का एक रेवड़ है जो कौम के अंदर पल रहा है। कोई मैनर्स नहीं है, कोई एटिकेट नहीं है, कोई अदब आदाब नहीं है, कोई तरीकेकार नहीं है, तो है ही। ना हमारे घरों के अंदर इसको सिखाया जाता है, ना स्कूलों कॉलेजों में सिखाया जाता है, ना तालीमी इदारों में सिखाया जाता है, ना मदारस में सिखाया जाता है। सब बंजर वीरान हो, हर तरफ एक वीरानी, और खुद हम सीखने की कोशिश नहीं करते, खुद हमें इसकी फिक्र नहीं। अल्लाह हमारे हाल पर है फरमाए। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह इस मौजूद में बात होगी। तो मेरे दोस्तों, खुदा के लिए सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा करें, और दीन को समझना हो तो दीन को आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से समझा करें, सीरत के हवाले से समझा करें, फिर दीन बड़ा अच्छा समझ आएगा। अगर किसी और हवाले से समझ आया तो फिर शायद हम इसी तरह की बीमार कुर्सियाँ करते रहेंगे, और इसी तरह के अदब आदाब और मेहनत और एटिकेट हमारे अंदर परवान चढ़ते रहेंगे, और अपने तौर पे हम ये समझते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पीछे गिरते गिरते न जाने हम कहाँ गिर जाएंगे। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए, हुजूर के सदके इस उम्मत को माफ फरमाए, और हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा जो है मोहब्बत करने